In this video, we will be discussing regarding the branch related to the computer science. So there are a lot of branch which are related to the computer science like artificial intelligence, IT, and data scientist. All these branches are there. So the students are quite confused that what branch we have to choose and what are the difference basically. So that is the major reason in which we will be discussing that what is the basic difference, and we'll try to understand with example. So even I'm learning with you guys because usually these kind of videos are not available on YouTube, but I'm trying to deliver something new. So even I'm learning. So if there is any mistake, you can let us know in the comment box also. So we will rectify in the upcoming video. Okay. And you can subscribe and share also. So basically the first role is software engineer. So software engineer basically they write the code, and a software engineer, this is the example, a software engineer at Google helps to build Google search engine. So this is the basically the example. Okay, so the skills that is required, these are the skills like Python, Java, C++, data structure, algorithm, and problem solving. And salary is good. See, in this video, you also want to tell that if you don't have computer science in 11th and 12th, I will suggest join a batch for the student, join a computer science batch. Okay, so one of my friend, he's a computer science teacher, so he's having a lot of students who are currently taking classes from him. So also if you want, you can let us know. We will share their contact number to you, and he can help you also. So that option is also there. But if you don't have computer science, I will suggest definitely you'll be requiring. Even if you have, you can get some advanced level classes with him, which can help you, to understanding for the first year and the second year, and help you in future, because he's currently working in the industry. So that will also give you an idea that how currently CS industry is working. Okay. So now another is full stack development. So full stack basically the build front end and the back end. So अगर आप देखेंगे जो भी आपको वेबसाइट पे दिख रहा होता है और उसके पीछे की कोडिंग चल रही होती है, थोड़ा मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर होता है। कि जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट खोल रहे हैं, आप स्विगी जोमेटो का अगर आपने ऐप खोला, उसमें जो दिख रहा है आपको सामने, तो वो फ्रंट एंड हो गया, व्हाट यूजर सी, एंड बैक एंड बिहाइंड द सीन ऑफ अ वेबसाइट और अ एप्लीकेशन। ठीक है, तो बिल्डिंग अ फूड डिलीवरी ऐप, स्विगी, अमेजोन, इस तरीके से, इसके लिए बेसिकली ये आपकी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सैलरी पोटेंशियल इसमें भी काफी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे फुल स्टैक के साथ जैसे फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर इन दोनों का मिक्स है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियरिंग बेसिकली कि आपका जो भी काम है, या जैसे अगर आप नेटफ्लिक्स देखोगे ना, तो नेटफ्लिक्स को अगर आप देखोगे तो उसका जो भी मूवी जो स्टोरेज है वो क्लाउड स्टोरेज, जब भी आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप उसको किसी सर्वर के थ्रू यूज कर रहे हैं, तो they manage server and the cloud infrastructure to make sure application run smoothly on cloud. So like AWS हो गया, Google Cloud हो गया, Linux हो गया, इस तरीके की ये चीजें हो गई। ठीक है, इसमें भी सैलरी जो है अच्छी है। डेटा साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं, तो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, दे एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू फाइंड पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप मूवीज में देख रहे हो कि आपको रिकमेंडेशन में नेटफ्लिक्स में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन हो रहा है, ये है, तो वो डेटा साइंटिस्ट देखते हैं कि किस रीजन में कौन सी मूवीज ज्यादा देखी जा रही है। तो ये सबका कैलकुलेशन जो है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को उसमें पैटर्न फाइंड करना और प्रेडिक्शन बनाना, वो डेटा साइंटिस्ट के अंदर आ जाता है। इसके लिए आपको ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाता हूं मैं, डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर बेसिकली दे बिल्ड एंड मैनेज सिस्टम एंड कलेक्ट एंड स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, कि वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, किस तरीके से वो स्टोर होगा, किस तरीके से वो डेटा मैनेज किया जाएगा, तो वो बेसिकली डेटा इंजीनियर्स वो करेंगे। ठीक है, इसके लिए ये सारी स्किल्स भी आपको
होनी चाहिए। और ये इसका एक एग्जाम्पल है। AI इंजीनियर्स मेरे हिसाब से आप सब लोग जानते होंगे, दे बिल्ड अ AI सिस्टम दैट कैन थिंक एंड लर्न, सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमंस। जो इंसानों की तरह, मतलब नाम से ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो इंसानों की तरह सोच सके। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, फेस रिकग्निशन सिस्टम्स हो गया। तो ये सब आप AI इंजीनियर्स में ला सकते हैं। इसके लिए आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी जो आपको चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। एक अच्छा बूमिंग सेगमेंट है ये करंटली, अच्छा पेइंग कैपेसिटी है इसमें भी। मशीन लर्निंग में अगर आप देखेंगे तो दे ट्रेन मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स यूजिंग डेटा। सो अगर आप रिकमेंडेशन किसी भी यूट्यूब पे देख रहे हैं या कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वो बेसिकली मशीन लर्निंग में आ गया। अब देखिए, ये बहुत सारी जो ब्रांच है वो एक दूसरे से लिंक भी हैं। जैसे डेटा साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़े डेटा से एक पैटर्न फॉलो कर लिया, उससे उसने मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को दे दिया। मशीन लर्निंग ने इंजीनियर्स ने फिर क्या किया, उस डेटा को फीड कर कर एक ऐप को ट्रेन किया। तो उस ऐप को बनाएगा कौन? AI इंजीनियर्स, और फिर उसके साथ मशीन लर्निंग वाले उसके अंदर उसको फीड करेंगे, और उस डेटा को रिफाइन कौन करेगा? डेटा इंजीनियर। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो काम करेगा। तो आपको जब भी अगर आप देखते हैं कि जैसे यूट्यूब पे भी हम लोग देखते हैं या रील्स हम लोग देखते हैं, तो और अगर आप कभी ये भी देखोगे एक पर्टिकुलर रीजन के लोग एक ही रील देख रहे हैं, है ना, तो ये इस तरीके से फीड ये चलता है। ठीक है, इसमें भी अच्छी पेइंग कैपेसिटी वाली जॉब्स है इसमें। साइबर सिक्योरिटी मेरे को लगता है ये लॉन्ग टर्म में अभी बहुत इसमें ग्रोथ होगा, क्योंकि जनरली जैसे भी आप देखोगे, जनरली हम लोग फोन्स, लैपटॉप्स का बहुत ज़्यादा अब यूज़ करने लगे हैं। उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, आपके डेटा को सेफ रखने के लिए, बैंक सेक्टर्स तो अब सब डिजिटल हो गए हैं, तो उसको सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जो ब्रांच है ये मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन बैंक अटैक, साइबर सिक्योरिटी, और ये एक अच्छा और बहुत बच्चों को ये बहुत पसंद भी आता है, मतलब एक फैसिनेटिंग टाइप का ब्रांच है, तो बहुत बच्चे इसे भी लेते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। तो मुझे क्योंकि लगता है कि ये काफी, जितनी ज्यादा क्रिएटिव टाइप की ब्रांच होंगी, क्रिएटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना ऐसा है कि हर दिन आपको कुछ नया सोचना है कि अब इस तरीके का सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस तरीके से किया। तो देखिए, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोसेस है ये मैंने एक पुराने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस ले रहे हैं तो एक कंटिन्यू सेगमेंट है लर्निंग का। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, तभी ये ब्रांच लीजिए कि आपको एक कीप लर्निंग फेज में रहना पड़ेगा। डेवऑप्स इंजीनियर का अगर आप देखेंगे, दे हेल्प टू डेवलप डिप्लॉय सॉफ्टवेयर क्विकली एंड सेफली ऑन सर्वर्स। तो इसके एग्जांपल हम समझ लेंगे, जैसे व्हाट्सएप ने कोई भी नया फीचर रिलीज किया है तो उसको ऐप तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है। और प्रोडक्ट मैनेजर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली दे डिसाइड व्हाट फीचर शुड बी बिल्ड एंड हाउ प्रोडक्ट शुड ग्रो। तो मतलब बेसिकली व्हाट्सएप पे जैसे पहले अगर आप देखोगे सिर्फ वीडियो कॉल और वीडियो कॉल का ऑप्शन आता, ऑडियो कॉल का आता था, फिर वो वीडियो कॉल आ गया। हो सकता है आने वाले टाइम पे कस्टमर की डिमांड को देखते हुए उसमें लाइव जाने का ऑप्शन भी आ जाए। तो जैसे इंस्टाग्राम में आता है या फेसबुक में आता है, तो हो सकता है व्हाट्सएप पे भी आपको लाइव का ऑप्शन देखने को मिले। तो ये भी एक इन फ्यूचर आप देख सकते हैं। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी है, मार्केट स्ट्रेटेजी है, ये सब आपके प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ब्रांच अपॉर्चुनिटी और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको मैं समझा ही देता हूँ। वैसे तो ब्रांच वर्सेस अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो अगर आप, इफ यू आर फ्रॉम CS, IT, MNC, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, AI, AML, यू कैन गेट मोर ऑफ द जॉब स्किल प्लस प्रोजेक्ट। ये देख सकते हैं आप। देखिए, अगर आप कोडिंग आपको बहुत ठीक लगती है तो सॉफ्टवेयर एंड फुल स्टैक, डेटा से आपको प्यार है, डेटा को, एक बड़े डेटा को आपको ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जाता है वो सब आप सीखना चाहते हैं, वो तो आप ले सकते हैं डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर। मशीन लर्निंग, मशीन से मतलब मशीन से प्यार नहीं, मतलब मशीन लर्निंग से तो आप ले सकते हैं AI। सिक्योरिटी, आपको लगता है कि किस तरीके से इतना बड़ा डेटा कोई सेव करता होगा या सिक्योर करता होगा, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आप सीखना चाहते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी ले सकते हैं।
बिजनेस और टेक से अगर आपको प्यार है तो इसमें आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। अब देखिए, सैलरी गाइड अगर आप देखेंगे तो सैलरी लगभग एंट्री लेवल पे 3 to 6 लाख, मिड लेवल 6 to 15 लाख, एक्सपीरियंस 15 to 30 लाख, टॉप कंपनीज में 30 lakhs, वेरी ऑन द कंपनी, लोकेशन, प्लेसमेंट्स। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको दिया हुआ है। जनरली अगर आप कॉलेज, अच्छा कॉलेज है आपके पास और ठीक आपका इंटरव्यू हुआ है, गया है, तो होपफुली आपको 6 से 15 के बीच में आपका सैलरी रेंज हो सकता है, अनलेस कि आप मास रिक्रूटिंग कंपनीज में ना हो। ठीक है, मोटा मोटा ये एक ज्ञान की बात है कि हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर भी आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की लेकिन मुझे ऐसा नहीं मिला, फिर काफ़ी देर 10, 15, 20 चीज़ें करने के बाद फिर जाके ये फाइनली बन पाया है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, थैंक यू।